and I would request all the teachers to please switch on their cameras if that is possible for you all, because if I don't see people around me, it's difficult for me to communicate, because the topic is storytelling, and in storytelling you need to see people, how do they react, because storytelling and why it is necessary. Let's think from this perspective. Is it okay if I use Hindi, or is it compulsory to use English? You can use bilingual, ma'am, no problem. Bilingual, no problem. Absolutely. Thank you so much. जब तक के भाषा अपनी लैंग्वेज में नहीं होती, जब तक हम अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, तब तक के वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंचती. English, yes, it is important and it is mandatory, but sometimes I think few things when done in Hindi makes a lot of difference. So it's good to see that we are almost 57 participants, and thank you, Sanjay sir, for giving me an opportunity for coming and interacting with so many teachers here. Storytelling जरूरी क्यों है, और आप जब छोटे थे तो आपको किस तरह की स्टोरी सुनाई जाती थी? सारे टीचर्स से क्वेश्चन है मेरा. पंचतंत्र स्टोरीज मैम. पंचतंत्र स्टोरीज, ओके. रामायण स्टोरीज. रामायण, यस यस. कभी कभी भूतों की भी स्टोरी सुनाई जाती थी मैडम. बीरबल की स्टोरी. अकबर बीरबल, यस. हमको ये सारी स्टोरी सुनाई जाती. काफी, यस, विक्रम बेताल. दैट वाज माय फेवरेट स्टोरी, विक्रम बेताल. बट आप लोग ने कभी नोटिस किया है, जब भी हम स्टोरीज की बात लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर पाते हैं, राइट? हम वो चीज इमेजिन कर पाते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट क्या है, उसके पहले हम समझते हैं कि इसका साइंस क्या है. ये आर्ट ऑफ टेलिंग हमारे ब्रेन के लिए या हमारे बच्चों के ब्रेन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? आर यू ऑल रेडी फॉर इट? इमेजिनेशन के लिए मैम. Yes ma'am. Yes ma'am. When you look at the brain, तो उसमें दो हेमिस्फीयर्स है. One is right hemisphere, other is a left hemisphere, right? One is for logic and other is for imagination. किसी ने जवाब दिया कि स्टोरी टेलिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज वो इमेजिनेशन को एनहांस करती है. वेरी ट्रू. बट इसके साथ में जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत सारी चीजों को डेवलप करती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 5 लोब्स है. प्री फ्रंटल, frontal, parietal, occipital and temporal. ऐसे lobes है. ये 5 senses के लिए काम करते हैं. और when you talk about these 5 senses, they have their own, their own functions and their own functionalities. So जब हम story telling कहते हैं तो उसमें बच्चे का perception development, which is a part of your prefrontal lobe, perception development. How do the society work? Their interpersonal skills, their logic, their imagination, their they build up their own characters. For example, अगर से मैंने बिरबल और इसकी अकबर और बिरबल की स्टोरी सुनी थी, तो मेरे लिए I have made my own अकबर and I have made my own, जो अभी दिखता है अकबर बिरबल की स्टोरीज में या कहीं पे, उससे काफी अलग थे मेरे अकबर और बिरबल. इवन फॉर दैट मैटर हनुमान बहुत अलग दिखते हैं मेरे. तो इमेजिनेशन में वी बिल्ड अप दोस कैरेक्टर्स. इवन अगर से आपने हैरी पॉटर पढ़ी होगी, तो आई एम श्योर जो हैरी पॉटर रियल की मूवी में दिखाया गया है, वैसा आपका हैरी पॉटर नहीं था. था क्या? इट वुड बीन वेरी डिफरेंट. No ma'am. Right? No ma'am. Yeah. Very different, because we, as per our perspective, we have developed those characters. It definitely enhances our imagination, but with that बहुत बारीक बारीक चीजें होती है. रपुंजल के बारे में अगर से बात भी की जाए, रपुंजल वन ऑफ द फेवरेट क्वींस, प्रिंसेसेस ऑफ टुडेज जनरेशन. तो रपुंजल के बाल कितने घने होंगे, कितने बारीक होगी. हमारा इमेजिनेशन इतनी बारीक बारीक चीजों को भी जान लेता है. वी क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर. सो स्टोरी टेलिंग does not talk about this, but it also talks about the language development that is happening with the kids, the sounds that has been created. So many things are there when we talk about storytelling. इसके साथ में आपको observation skill. So when we talk about
स्टोरी टेलिंग, इसमें सारे एस्पेक्ट आपके ब्रेन के, आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं. Mountain was very lonely, was sitting alone. He had no friends. One day, a bird came, and Mountain thought that that bird would be a good friend, but he was confused whether he should talk or not. Then Bird said, "Okay, let me talk to this mountain." And slowly they became friends. But there was a time when Bird needed to leave. But before leaving, Bird said, Bird said, "Okay, I'll come next year." Mountain said, "I'll wait for you." And this is how they become friends, and the date started. So this is the one way. Was that interesting? It was not that interesting, because it was monotonous, but there was no sound, but there was nothing in it. But now it's the same in a different manner. There was a big, huge mountain with serenity, mountain which was tall, mountain that could see. The clouds and the shower of rain. The mountain was still in the position of a yogi, a very much yogi, which is satisfied within. Doesn't need a friend, doesn't wanted anybody to be the friend, because the yogi was alone. He could enjoy the every aspect of being what he is, the nature. But one day, there was a thought that started wandering. Why am I alone? Why am I alone? And that thought made him think about that he should have some friends. And there was a sound. And that was a bird that sat on the mountain shoulder. "Hello," the bird said. And the bird had a very meek voice. Mountain did not know how to react. But the mountain said, "Hello," in its own voice. "Hello, hello, Mr. Mountain." Mr. Mountain said, "Hello, who are you?" Bird said, "Mr. Mountain, I am a bird. I cannot fly high, but I was flying with my mother, my father, my sister, my cousins. But while flying, I got hurt, so I came and sat here. Hope you don't mind." Mountain, for him, it was a very new experience altogether. Mountain was quiet. He said, "Yes, you may sit till you want." Because till now, nobody was interacting with the mountain. And Mountain somehow liked somebody was sitting on his shoulders. And this bird kept on talking about here, about there, and so many things. Once he was contented, he was fine. He started his journey again. He said, "Mr. Mountain, now I'm feeling better. Can I leave now?" And he started to flew. But somewhere, in the heart, there was something which he couldn't express.
some sort of pain. It was not that a good feeling. With the mountain and with the bird, something was bothering. He went and he turned back. He looked at the mountain with a big smile. He said, "Mr. Mountain, I need to leave, but you can't come with me, no? You are fixed." Mountain in his voice said, "Oh, yes, I cannot, but I need to be here. I cannot move." Mr. Mountain, don't worry. Next year, I will come again to see you. Once he said that, there was a big smile on the mountain and on the face of a bird. This is how, and with the swings he zapped into the air and moved forward. Mountain was in the wait of his friend again. Isn't that a true friendship, that you wait for your friends? So, my dear teachers, how did you like the story? I could see the comments. It was an interesting story. Thank you so much. But in this, don't you feel that without any props, without anything, you all were engrossed in it? Your all sense were there with me? Isn't it? Even with your kids, you know, the kids are such where they're fidget a lot, they have a lot of energy, but it's very important to keep them interactive. We need to do what? We need to make these sounds. Voice modulation is one of the important aspects when we talk about art of storytelling. Art of storytelling, you know, today many people said, you know, you need to use props, you need to use this, you need to use that. But with that, we need to do this also. That how do we make it very, very nice with the voice modulation? You know, one of the favorite stories that a primary teacher teaches to its tiny tots is a thirsty crow, isn't it? How do we start with a story? And yes, in this, I'm going to add on few aspects which are very, very necessary to introduce small concepts. Hope you are there with me and enjoying the session, right? Great. So let's move forward. So once upon a time, you know, generally हम ये जो crow की story है वो किस तरीके से सुनाते हैं? Once upon a time, there was a crow and he was very thirsty. He was looking here and there for the water, but he couldn't find. But now, all of a sudden in a jungle, he found a pot. And in that pot, he saw some water. And then he started putting up the pebbles and the water came up. He drank the water and he flew away. This is how we tell the story to our tiny tots. But let me give you a very different perspective of teaching different concept with this story. Okay, it was a warm, sunny, it was a warm afternoon. It was the summer vacations. Summers are very hot. Tell me, kids, how many weathers do we have? We have rainy seasons, we have winter season, we have summer season, and we have springs. Right? So, in the summer season, what do? In summer season, we feel more thirsty because it is very warm, right? Yes. And in that summer season, that crow was doing kai, 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 and it was flapping his wings. Can you all flap with me your wings? Let's flap together. Flap, flap, flap. Yes, we need to flap our wings. Kai, kai, kai. And he was not able to speak more kai, kai because he was thirsty. He looked here and he looked there and he couldn't find the water, and yet he needed to flap his wings in search of water.
Then, all of a sudden, he found a pot, and in the pot, there was a little water. He thought now what to do. He had no idea how to drink that water. Now, he thought. And when you think a lot, what do you get? Tell me. I get an idea. What do you get? Yes, you find solution too. Now what happened? When he came thirsty, he saw a pebble. Yes, he saw a pebble. Let's count. How many pebbles did he put in it? 1. And water sounded 2, 3, 4, 5, and slowly the water came up. And the crow drank the water. He felt nice and flap, 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 flap. But kai, kai sound, he left. Right? He left. Now, tell me, how many pebbles did he put in it? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, he put 5 pebbles. Now, can you tell me the color the crow has? Yes, it is black. So, the teachers now would like to have an interactive session. This is how I have introduced weathers to the kids with one story. I have introduced numbers to the kids, and I have introduced at a sound, and I've created an atmosphere that kids are listening to me. They are interacting with me, and we are talking to them. Storytelling in itself is a beautiful thing where you can introduce many concepts, very, very beautiful concepts with the kids. Now, can we have 2 teachers as volunteers with whom I can interact with? Can we have Sunita ma'am? Yes, ma'am. And Madhuri ma'am? Yes, ma'am. I'm ready. You are ready. And Sunita ma'am, are you ready? If Sunita ma'am is not ready, can we have some other teacher? Sunil sir. Kishore sir, right? No, I am supporting Sunil Upadhyay sir. Okay. So who would like to Sunil come and Upadhyay, join us? Okay, Sunil sir and Madhuri ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ready, ma'am. That's ready. So you tell me, I'm going to tell you, you need to introduce 2 concepts to the kids. Okay? And I'm going to give you a story that you all know. Okay? So you all are aware of the story, first story which I talked about the crow, right? Yes, ma'am. You all understood how did I introduce the concept. Now I'm going to let you choose your own story in which you have to introduce few things like 5 senses. You need to introduce 5 senses to the kids. Which story will you choose and how will you narrate? Assuming that we all are kids. Okay? So Sunil sir and Madhuri ma'am, you have 2 minutes to think on that introducing 5 senses. So with this 5 senses, we just not only see, we don't just only hear or not just smell or taste, we feel also, right? We feel, our body kinesthetic is extremely high and you need to do an activity along with it. So you have 2 minutes to think. Hello, and get me back. Yes, Sunil sir. मैम हिंदी में बोलूं? Exactly, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये स्टोरी है मैम 2 बिल्लियों की
इसमें दो बिल्ली जी हाँ। मैम आपको अज्यूम करना है कि आपके सामने में बच्चे बैठे हैं। सुनील सर, आपको ये अज्यूम करना है कि आपके सामने में बच्चे, हम सब जो है वो बच्चे हैं, और बच्चे जो है उनको अगर से आप ऐसे स्टोरी सुनाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपको स्टोरी ऐसे समझाना है कि हम सब बच्चे हैं और आपको हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है 5 सेंसेस का। ठीक है, कॉन्सेप्ट 5 सेंसेस। चलिए शुरू। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 2 बिल्लियां थी, एक काली बिल्ली थी और एक सफेद बिल्ली थी। तो काली बिल्ली, आपने बिल्ली देखी है ना? तो बिल्ली की आवाज कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एक काली बिल्ली थी और एक सफेद बिल्ली थी। वो दोनों बिल्लियां एक बार आपस में मिलती हैं। काली बिल्ली बोलती है, बहन तुम कैसी हो? सफेद बिल्ली बोलती है, दीदी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? म्याऊ म्याऊ। तभी उनको एक कहीं से खुशबू आती है, रोटी की खुशबू आती है। बच्चों, आपने रोटी खाई है ना? रोटी में घी लगी हुई थी और घी की खुशबू आ रही थी। तो आपको खुशबू कैसे आती है? सर, नाक से आती है। हाँ बच्चों, नाक से आती है ना? अब हम चलो बताते हैं। और दोनों बिल्लियां रोटी को ढूंढने लगती हैं और तभी उनको एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है। और जब वो रोटी देखते हैं तो दोनों रोटी के ऊपर झपट्टा मारते हैं। झपट्टा कैसे मारते हैं? पंजा देखा है ना बच्चों आपने? बिल्ली का पंजा कैसा होता है? बहुत ही नुकीला होता है। और वो बिल्ली के ऊपर, तो बिल्लियां दोनों रोटी के ऊपर झपट्टा मारती हैं, लेकिन काली बिल्ली को रोटी मिल जाती है और वो बोलती है, ये रोटी पहले मैंने देखी है, ये रोटी मैं खाऊंगी। सफेद बिल्ली बोलती है, नहीं ये रोटी पहले मैं देखी हूं, मैं खाऊंगी। और दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। तुम लोग भी बेटा कभी लड़ाई करते हो? घर पे लड़ाई करते हो या आपस में लड़ाई करते हो? खाने के लिए, चॉकलेट के लिए, या घर में जो पापा लेके आते हैं? नहीं करते सर। अब ओके बेटा, लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़ाई करते हैं तो हम लोग का नुकसान हो जाता है। तो दोनों लड़ाई करने लगते हैं रोटी के लिए। तभी उनको याद आता है, अरे हम लोग को लड़ाई नहीं करना चाहिए। बहुत पहले एक बंदर था ना, उसने, जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे हमारे पापा मम्मी, तो बंदर ने रोटी खा ली थी और हमको कुछ भी नहीं मिला था, मेरे पापा मम्मी को। तो दोनों बिल्लियां बोलती हैं, हाँ बहन हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो काली बिल्ली रोटी तोड़ के सफेद बिल्ली को खिलाती है और उसको सफेद बिल्ली काली वाली को खिलाती है और दोनों आपस में गले मिलके खुश हो जाते हैं। थैंक यू मैम। बस मैं आपके जैसा तो मैम बोल नहीं सकता मैम, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं करूंगा मैम। आपने बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू मैम। सुनील सर, काफी अच्छा अटेम्प्ट था आपका, बट इसको अगर से हम थोड़ा सा मॉड्यूलेट करें तो इसमें 5 सेंसेस जो आपने सर बाकी लोग माइक म्यूट कर दो। जो हम बात कर रहे थे वो एक्सेल। सुनील सर, तो ये 5 सेंसेस आपको जो इंट्रोड्यूस करने थे, आपने स्मेल, विजन काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। इवन जो आपने पंजे का इस्तेमाल बताया, बहुत अच्छे से बताया। सो इसको वैसे थोड़ा सा, इफ यू गिव मी परमिशन, कैन आई रेक्टिफाई इट? मैम आपके जैसा तो नहीं मैम, लेकिन मैं कोशिश किया कि मैं कुछ करूं मैम। नहीं, बहुत बढ़िया कोशिश थी, बहुत बढ़िया कोशिश थी। सिर्फ इसमें से एक दो चीज मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? मैम आपका आशीर्वाद बना रहे मैम, थैंक यू मैम। से मिलता है हमारी जीभ से, राइट, हमारी टंग से। इसको पता चलता है ना कि खट्टा क्या है, मीठा क्या है, तीखा क्या है, नमकीन क्या है, राइट। और इसके बाद में हमको जब लगती है तो दुख रहा है, ये कैसे समझ में आता है? ठंडी लग रही है, स्किन से समझ में आता है। वैसे ही जब किसी से मारा मारी करते हैं, लड़ाई करते हैं तो लग जाती है, तो ये हमको हमारी स्किन बताती है। सो इस तरीके से हमारे पास में 5 सेंसेस है, राइट सर। यू कैन ऐड दीज थिंग्स इन योर स्टोरीज। और काफी प्रॉम्प्ट था सुनील सर, आपने बहुत बढ़िया किया। अ वेरी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। And Madhuri ma'am, now your turn. Yes, ma'am.
मैं कोशिश करूंगी। चलो बच्चों, यस, चलो बच्चों, आज हम स्टोरी सुनेंगे एक कछुए की और खरगोश की। पता है, ये दोनों जंगल में रहते थे। हाँ, खरगोश बहुत छोटा था, लेकिन वो हरी भरी बहुत सारी घास खाता था। किससे खाता था पता है आपको? किससे? कोई बता सकता? हाँ, हरी भरी घास का उसको टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। आपको अच्छा लगता है कौन सा टेस्ट, मुझे बताओगे? स्वीट, मीठा, चॉकलेट। ये जैसे आपको चॉकलेट अच्छा लगता है, वैसे ये खरगोश को हरी भरी घास बहुत अच्छी लगती थी। हर रोज सुबह उठ के और बहुत सुंदर सुंदर वो घास बहुत पेड़ भर के खाता था, और दोपहर को एक पेड़ के नीचे खर्राटे लेके सोता था। एक दिन क्या हो गया, वहां से एक छोटा सा कछुआ धीरे 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 चल रहा था। क्यों चल रहा था धीरे धीरे, कोई बता सकता है? हाँ, तो स्पीड स्लो है। हाँ, यस, वेरी गुड चाय। रूमाली, आप तो बड़े अच्छे हो, बहुत सारे आंसर्स देते हो। यस, क्योंकि कछुआ बेचारा बहुत फास्ट भाग नहीं सकता है ना, इसीलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन वो चलते चलते उसने अपनी आंखों से किसको देखा? छोटे से खर्राटे लेते हुए एक, किसको देखा? खरगोश को। खरगोश को। बहुत अच्छा। देखो, बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगी, आपको देने हैं, सारे जवाब देने हैं बेटा। हाँ, खरगोश को उसने देखा। किससे देखा? अपनी छोटी छोटी आंखों से। आपकी आंखों से आप अभी किसको देख रहे हो? मैम, आपको को देख रहे हो, लेकिन कैमरा ऑफ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वैसे ही छोटी छोटी आंखों से वो उसने खरगोश को देखा, और अपना बेचारा धीरे 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 आगे चलने लगा। जैसे वो आगे चलने लगा, ये खरगोश भाई अपनी नींद में से उठ गया और उसको बोला, अरे कछुआ, तू तो है इतना छोटा, धीरे धीरे चल रहा है, क्या तेरी चाल है? चल, हम एक काम करते हैं, हम दोनों आज एक शर्यत लगाएंगे। बेचारा कछुआ बोले, नहीं, शर्यत लगाएंगे तो मुझे चोट आ जाएगी। चोट किस पे आती है बेटा? चोट आ जाएगी चलते चलते आपके साथ, तुम ढुलक जाएगा, खून आ जाएगा, है ना? खून किससे आता है? हमें यदि चोट लग जाती है, खून आता है, तो हमारे स्किन से आता है ना? आपको भी आता है कभी कभी, चलते चलते लग जाता है कुछ तो। हाँ, तो ये चोट लगने से भागते भागते चोट आ जाएगी तो हमें लग जाएगा, ऐसे उसने बोला। बोले, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। अभी हम यहाँ से लेके वो जो आगे वाला माउंटेन है ना, वहां हम जोर से भाग के जाएंगे। तो दोनों ने शुरुआत की, और दोनों भागने लगे। लेकिन बेचारा कछुआ छोटा था, धीरे धीरे भाग रहा था। अपने कछुआ भागते भागते अपनी अपनी चाल से चल रहा था, लेकिन खरगोश ने क्या, फटाफट गया आगे जाके, हरी हरी घास खा ली, और उसने देखा, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है। इसीलिए एक पेड़ के नीचे में थोड़ी देर सो जाता है, खराटे ले, उसको आदत थी ना, इसीलिए गया और वो सो गया। ठीक है, अभी आगे कछुआ धीरे 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 कंटिन्यूअस चल रहा था। बेचारा, उसको आस थी कि मैं सबसे पहले पहुंचू, लेकिन शाम होते होते कछुआ तो आगे पहुंच गया। और जब इसकी नींद खुली, अरे उसने देखा पीछे तो कछुआ नहीं, आगे देखा तो अरे कछुआ तो पहुंच गया। फिर वो दौड़े 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 उसके पास गया, उसने देखा, अरे आप तो कैसे पहुंच गए यहाँ पे? हाँ, बोले, मैं तो धीरे धीरे अपने स्पीड से आया हूं, मैंने तो किसी से कंपैरिजन नहीं की, मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो अपनी चाल से चलता हूं,
इसीलिए लेकिन मैं कंटिन्यू चला, मैं कहीं रुका नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं इधर उधर किया नहीं, इसीलिए शायद मैं पहुंच गया, है ना। तो ऐसा होता है। तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए बच्चे। तो उसने रैबिट ने क्या किया था? अहंकार किया था। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा दौड़ता हूं, बहुत अच्छा चलता हूं, है ना। और उसने हार्डवर्क नहीं किया, कंटिन्यूअस, वो भागा नहीं, इसीलिए वो वहीं पे रुक गया। और कछुआ ने हार्डवर्क किया, जैसे हमको पढ़ाई में भी करनी है हार्डवर्क, कंटिन्यूअस, हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो हम नंबर 1 हमेशा आ सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू माधुरी मैम, काफी अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। हमको ये चीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टोरी टेलिंग से हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ जस्ट मॉरल्स नहीं, मॉरल्स के साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं। अगर से हमारा थीम, क्योंकि जब प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहीं से ही सिखाते हैं। तो अगर से हम सिखा रहे हैं जंगल या एनिमल्स, सो हम लोग इस तरह की स्टोरी में अलग अलग एनिमल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फिर कछुए ने ये एनिमल देखा, वो एनिमल देखा। जब हम वाइल्ड एनिमल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स यूज करते हैं, तो हमको स्टोरी के हिसाब से एनिमल्स कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। हम किसी भी स्टोरी से किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी नाइस अटेम्प्ट, थैंक यू सो मच। You can create your own story. Yes, Sunita ma'am, you can create your own story because creating that will not make that much of difference. And moreover, I'm going to tell you a very interesting concept जो सिर्फ प्राइमरी बच्चों के साथ नहीं, आगे चल के सेकेंडरी बच्चों के साथ में भी यूज की जाती है। एंड इसके लिए मुझे आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन स्पैन चाहिए कि हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से स्टोरी के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। सो आप लोगों ने वर्ड सुने हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। उसके बाद में आई एम गोइंग टू गिव यू लिस्ट ऑफ सर्टेन वर्ड्स जिनका एज इट इज याद करना है, ठीक है। फर्स्ट है वर्ड कार्बोनेट, सेकंड इज सोडियम, थर्ड इज मैग्नीशियम, fourth is argon, fifth is fluorine, sixth is bauxite, seventh is oxygen, eighth वाला जो है वो ऑक्सीजन के बाद में है पोलोनियम के बाद में टाइटेनियम एंड लास्ट इज गैलियम। सो 10 वर्ड्स, ये 10 वर्ड्स यदि मुझे अपने स्टूडेंट्स को याद कराने हैं तो मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे याद करवाऊंगी। यू नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम स्टोरीज को, इन डिफिकल्ट चीजों को मेमोराइज करवा सकते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इसेंशियल, क्योंकि इसको हम इतना सरल कर देते हैं कि बच्चों को सब चीज याद हो जाती है। हम जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, किसी का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि आप याद कर लो। अब आप मुझे बताइए, कार्बोनेट, सोडियम, इन सबको याद करने के लिए कौन सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी? कोई अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए? यू ओनली हैव टू मेमोराइज, इजंट इट? यस और नो? यस मैम, राइट। यस मैम। यदि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें एक स्टोरी के थ्रू आपके दिमाग में बैठा दूं तो क्या आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं। संगीता मैम, आपने पूछा वाई, किस चीज के लिए ये वाई है? संगीता मैम, मुझे आपके क्वेश्चन नहीं समझी। हो गई खिचड़ी। आपने लिखा वाई, ये वाई आपने पूछा था ना, हाँ अभी आपने पूछा था ना, उसका जवाब नहीं दिया था। ओके, so it wasn't yes or okay, it means yes। तो मेरे को लगा वाई पूछा था, कोई क्वेश्चन है यदि आपका? ओके, नहीं मैम। तो आप देखिए कि कार्बोनेट, ये ना नॉर्मल हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, पर यदि मैं इसको सिंपल कर दूं और आपके सामने आपके ब्रेन को एक इमेज दे, तो किस तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे? कार्बोनेट, आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं कार का बॉनेट से? यस मैम। कैन यू रिजेंबल विद दैट, कार का बॉनेट? ओके। सोडियम को क्या हम सोडा के थ्रू रिजेंबल कर सकते हैं? यस। सोडा,
सोडा, सोडियम रिजेंबल कर सकते हैं? यस। संतोष, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, नाउ उसके बाद में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को याद करने के लिए हम बोल सकते हैं मैगी इज यम, राइट? यस मैम। यस यस। उसके बाद में आता है आपका मैग्नीशियम के बाद में आता है आर्गन। आर्गन को क्या भी रिजेंबल है, क्या एयर गन का पिक्चर बना सकते हैं आर्गन से, राइट? यस। आर्गन के बाद में मैंने बोला फ्लोरीन। फ्लोर के ऊपर रिन बिखरा हुआ दिख रहा है आपको अभी? हाँ। राइट। अब मैंने बोला, अब मैं नेक्स्ट वर्ड था बॉक्साइट, राइट? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को क्या हम एक बॉक्स टाइट देख सकते हैं? बॉक्स जो बहुत टाइट है, यस राइट? हम ये इमेजिन कर सकते हैं। क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऑक्सीजन चलाते हुए? यस। इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बोला टाइटेनियम, सॉरी पोलोनियम। पोलोनियम में क्या आप देख सकते हैं? फोन पे टाइटेनियम। टाइटेनियम की जगह पे क्या आपको टाइटैनिक शिप दिख सकती है? आ रही क्या कर रहे भाई? क्योंकि टाइटैनिक आजकल हर बच्चे को पता है। यस मैम। या तो फिर टाइटन की घड़ी, राइट? एंड लास्ट थिंग जो मैंने बोला आपको, गलियम। तो क्या अपने घर की गली हमें दिख सकती है? डेफिनेटली दिख सकती है। नको करे। तो चलिए अब इसके ऊपर एक ना बेहतरीन स्टोरी बनाते हैं अपने मन से, जिससे हम बच्चों को ये वर्ड्स एज इट इज सीक्वेंस में याद करवा देंगे और 2 मिनट में। तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कि हमको साइंस पढ़ाना भी या हिस्ट्री पढ़ाना भी कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आप इमेजिन कीजिए बच्चों कि आप एक ब्लू कलर के कार के बोनेट पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ब्लू कलर के कार पे बोनेट पे। तो कार बोनेट ये किसको रिजेंबल करता है? कार्बोनेट को। किसको रिजेंबल करता है बच्चों? ये कार्बोनेट को। और फिर आप सोचते हो कि यार अब कार के बोनेट पे बैठे बैठे थोड़ी सी प्यास लगी, तो आपको पास के शॉप में क्या मिला? सोडा, यानी सोडियम। फिर आप सोचते हो कि यार सोडा तो मैंने पी लिया, मुझे भूख लगी है, तो आपको मैगी दिखी, पर मैगी तो खाने में कितनी यमी है ना, मैगी इज यम, तो मैग्नीशियम। अब जब आपका पेट भर गया है, आपको मैगी इतनी यम लगी, तो थोड़ी सी मैगी बच गई थी, तो आपने सोचा चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपने क्या की? आपने अपनी एयर गन निकाली और सोचा इस बची हुई मैगी को मैं डस्टबिन में डालूंगा। पर जैसे ही आपने उसको शूट किया, हाय, वो आपके पड़ोसी के फ्लोर पे गिरी और आपकी पड़ोसी आपको क्या चिल्ला के बोल रही है? देखो तुमने मेरा फ्लोर गंदा कर दिया, इसे अब रिन से क्लीन करो। क्लीन माई फ्लोर विद द रिन, फ्लोरीन, राइट? अब जब आप फ्लोर को क्लीन करते हो तो आपको बहुत टाइट बॉक्स दिखता है। वो टाइट बॉक्स बॉक्साइट, राइट? बॉक्साइट। अब वो बॉक्स को आपने बहुत मेहनत से खोला, तो आपने पता है क्या देखा उसमें? कि एक ऑरेंज कलर का ऑक्स ब्लू कलर की, सॉरी पर्पल कलर की जहन चला रहा है, और वो आपको बोलता है चल मेरे साथ बैठ जा। और आप कार में बैठ जाते हो, और पता है वो आपको कहाँ लेके जाता है? वो ऑक्सीजन आपको कहाँ लेके जाता है? एक पोल के ऊपर जहां पे नियम लिखे हैं, दैट इज पोलोनियम। एंड उस पे ये नियम लिखे होते हैं कि आगे में एक बहुत बड़ा टाइटैनिक जहाज टाइटेनियम खड़ा हुआ है, और वहां से आपके घर की गली भी दिखती है, राइट? तो चलो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या दिखा। फर्स्ट मेटल कौन सा था? फर्स्ट वर्ड कौन सा था? आप कहाँ बैठे थे? कार का बोनेट। कार का बोनेट, तो ये कौन सा वर्ड है? कार्बोनेट, ये राइट? कार्बोनेट। फिर आपको क्या लगा, तो आपने क्या पिया? सोडा, सोडियम। तो ये सोडा किसके लिए है? सोडियम के लिए, राइट? तो सोडियम। फिर आपको भूख लगी, तो आपने क्या किया?
मैगी। मैगी इज यम, राइट? तो वो कौन सा वर्ड था? मैग्नीशियम, राइट। तो आपने एक्सपेरिमेंट करते समय क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर, यस, आपने एयर गन यानी आर्गन का इस्तेमाल किया, राइट? अब मुझे बताइए उसके बाद में आपको किसके वजह से डांट पड़ी और आपको फ्लोर पे क्या करना पड़ा? क्लीन करना पड़ा। तो वो क्या था? फ्लोरीन। आपको फ्लोर किससे क्लीन करना पड़ा? फ्लोरीन, फ्लोरीन, दैट वर्ड वाज फ्लोरीन, राइट? वहां पे आपको क्या मिला? टाइट बॉक्स। बॉक्साइट, यस, टाइट बॉक्स यानी बॉक्साइट। तो आपने उसको खोला तो आपको क्या मिला? क्या दिखा उसमें? आपको क्या दिखा बॉक्स के अंदर में? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन दिखा आपको। यस, ऑक्सीजन मिला आपको। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था? आपको कहाँ लेके गया वो ऑक्स बिठा के अपनी कार में? पुल पे लेके गया। पोलोनियम। और आपको वहां से क्या दिख रहा था? टाइटैनिक। परफेक्ट, टाइटैनिक यानी कि टाइटेनियम। अब टाइटेनियम आपको जब वहां दिखा तो आप मुझे बताइए वो किसके पास था? वहां से क्या आपको क्या चीज दिख रही थी वहां? यानी गलियम। तो चलो अब हम वर्ड्स रिपीट करते हैं। हम स्टोरी को साइड में रखेंगे और सिर्फ वर्ड्स बोलेंगे। देखते हैं आप लोगों को याद हुआ है क्या? ओके, सो फर्स्ट वर्ड क्या था? कार्बोनेट। सेकेंड वर्ड सोडियम। थर्ड वर्ड मैग्नीशियम। फोर्थ वर्ड आर्गन। उसके बाद में फ्लोरीन। वेरी गुड। उसके बाद में 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 गलियम। अब चलिए देखते हैं आप में से कितने हैं जिनको रिवर्स ऑर्डर भी याद है। तो लास्ट वर्ड क्या था? टाइटेनियम। फुल, उसके पहले टाइटेनियम, उसके पहले फ्लोरीन के पहले बॉक्साइट। परफेक्ट। उसके पहले बॉक्साइट के फ्लोरीन। उसके पहले मैग्नीशियम। उसके पहले कार्बोनेट। परफेक्ट। अब आप मुझे बताइए कि आर्गन। परफेक्ट। और पोलोनियम के पहले ऑक्सीजन। अच्छा, लास्ट वर्ड, लास्ट कौन सा है? गलियम। बताइए सर एंड टीचर्स, आपको मैंने एक सीरीज याद करवा दी, क्या इतना डिफिकल्ट रहेगा बच्चों को पीरियोडिक टेबल या रिएक्टिव सीरीज करवाना? नहीं मैम। नहीं मैम। तो आपकी स्टोरी टेलिंग आप कहीं पे भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब आप बोलेंगे मैम आपने बता दिया, हमें समझ में आ गया, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। आपने नोटिस किया कि मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि आप देखो खुद को। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है? आई, मी, माई सेल्फ। तो सबसे पहले जब मैं खुद को देखता हूँ किसी भी चीज में तो मुझे ज्यादा याद रहता है, राइट? तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने आई वर्ड यूज किया। आप अपने आप को देखो, राइट? दूसरा वर्ड क्या किया? उस डिफिकल्ट वर्ड की जगह पे मैंने एक रिजेंबलिंग वर्ड याद कर लिया, जिससे मेरे ब्रेन में एक पिक्चर क्रिएट हो गया। बिकॉज मेरा ब्रेन जो है वो पिक्चर्स को देखता है, करेक्ट? मेरा दिमाग पिक्चर्स को देखता है, तो मुझे डिफिकल्ट वर्ड को सिमिलर पिक्चर्स के साथ में जोड़ना है। इसलिए कार्बोनेट, कार का पिक्चर बन गया, कार का बॉनेट बन गया। सोडियम, सोडा बन गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बन गया। तो इस तरीके से जब मैं वर्ड्स को जोड़ती हूँ, सिमिलर वर्ड्स पिक्चर क्रिएट करने के लिए यूज करती हूँ, उसमें कलर्स यूज करती हूँ, उसको मूवी की तरह बनाती हूँ,
तो एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट हो जाती है। हम कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को इस माध्यम से याद करा सकते हैं, फिर वो प्राइमरी हो, प्री प्राइमरी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो। जितना हम स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल फेज में जब हम नॉर्मल स्टोरीज बता रहे हैं तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसके साथ में हम पपेट्स यूज कर सकते हैं, इसके साथ में हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बच्चों को दिखाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम फिजिकली मिले होते हैं, इट इज वन ऑफ अ गुड मेमोरी ट्रिक ऑल्सो, करेक्ट मैडम? मैडम इसको विजुअल कंसेप्ट यूजुअल कम्युनिकेशन बोला जाता है मैडम। एब्सोल्युटली सर, ये विजुअल कंसेप्ट है, पर अगर से आप देखें तो है तो ये स्टोरी टेलिंग ही। यस मैडम, यस मैडम, राइट, ये है तो स्टोरी टेलिंग ही, मेमोरी टेक्निक है, पर इसका इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में एज टीचर्स हम कितना कर सकते हैं? डोंट यू थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट? यस मैम, यस मैडम, यस मैडम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना, कोई भी डिफिकल्ट चीज एक बार बच्चों को तोड़ तोड़ के लेट मी टेल यू, मुझे ना मार्क जकरबर्ग जो है ये मुझे कभी प्रोनाउंस करते ही नहीं आया, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया, मार्क जकरबर्ग। आप जब भी मैं वो जकरबर्ग तो नहीं बोलती हूँ, पर मार्क जकरबर्ग अब मुझे बराबर आ गया। पर क्योंकि हम भी कई बार डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, हम उनको नहीं बोल पाते, तो उनको अपने लैंग्वेज में पहले उसको तोड़ के इजी कर लीजिए ताकि हमारे न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर से कोई चीज मेरे लिए नोन है तो मेरे न्यूरॉन्स उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी सिनेप्सिस यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। यदि कोई चीज मेरे लिए अननोन है तो मेरा ब्रेन उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए बच्चों का रिटेंशन लेवल काफी कम हो जाता है और हम लोग अधिकतर रोट मेथड यूज करते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सच अ मैनर कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप कोई भी सब्जेक्ट इसके थ्रू सिखा सकते हैं। होप संजय सर आई वॉज एबल टू डिलीवर, मुझे जो टॉपिक दिया था आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद दैट टॉपिक, एंड नाउ फोरम इज ओपन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। Ma'am, please give me your number, no? Give us your number, please. Madam, so that we can contact you. Yes, my number is 77090 47790. Yes, sir.